Thank you so much for being here. And it's wonderful to have you all here to experience the very first, Josh Influencer Fest that we call Josh Workout. As you know, short video is all about, our influencers, and today we are pretty much here to celebrate these influencers. So what you're going to see, on stage, and I hope all of you are going to stay for it, is everyone bringing their Josh, to our stages and celebrating influencers. Thanks, Hayden. Harnaz, I'm going to come to you. Again, thank you for being here tonight. What are your thoughts? What are your expectations for this evening? For me, it's very relatable, to be honest. I was just 17 years old, as I was telling you, so I got the platform to explore my hidden talents. So Josh is one of those platforms which gives the opportunity to the people who themselves don't know about the fact that they are very talented and super versatile. So I was really happy to be a part of this association, and it's my first event. I'm very excited to see the talents of India and to cheer them up. Thank you for those insights. Ranata, I'm going to come to you now. You are a new addition to the Josh family, right? What are your thoughts about this whole India's biggest influencer festival? First of all, I'm really happy to be a part of this, and I'm very excited because it's very special. Like, we are celebrating influencers, which is India's biggest influencer fest. I'm very happy to be on Josh Workout, and I'm looking forward. Thank you. Sir, I'm going to come to you now. You've been part of our family since day one, right? You've seen us grow, you've seen us run, now you've seen us sprint, right? I mean, of course, when I say us, the Josh family, what are your thoughts about this? Good evening, everybody. Thank you for making it here. And I know शाम का ट्रैफिक काफ़ी ख़राब होता है, तो थोड़ा आप लोगों को भी समय लग गया आते बट थैंक यू फॉर मेकिंग इट हियर. आप कम से कम जन्नत से तो पहले ही आ गए, लेकिन लोग कहते हैं कि जन्नत जो है ना बड़े देर के बाद मिलती है, तो जिस जो बेचारे के यार के वेट करें. नहीं यार, इन्फ्लुएंस की बात करें तो दो खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे अगल बगल, टू यंग ब्राइट शाइनिंग स्टार्स. दोनों में कॉमन बात है कि ये दो पंजाबी फिल्में कर चुकी हैं. ये एक पंजाबी फिल्म अभी शूट कर चुकी हैं और बीच में मैं पंजाबी बैठा हूँ, तो पंजाबी इन्फ्लुएंस की भी बात आ गई इसमें. बट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस, आई थिंक जब Harnaz was telling me about platforms, when she was talking about how she got launched, what was her opportunity, it was incredible. Her story is very inspirational. She didn't give up. 5 times it took her to make it through. 5 बारी she failed. And I was just thinking कि एक young लड़की, एक contest जहाँ पे beauty is such an important personal aspect, तो लोग आपको देखकर judge कर रहे हैं, आप हार गए. तो 12 उतनी आत्मशक्ति होना, उतनी strength होना to go out there and present yourself again and again and again, not 1, 2, 3, 4, but 5 times, and then to see yourself to Miss Universe, a big hand for that. Really amazing, very proud. I think that's a very inspirational story for young girls, right? And इससे ज़्यादा जोश की बात क्या हो सकती है, right? Not to give up. Don't forget your film. हाँ, there you go. Thank you. बट मैं खुद के बारे में बात करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा. मैं इन दोनों की इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि हम होपी कि जब ये वापस बात करें तो मेरी तारीफ भी करते हैं. But jokes apart, on the other hand, you have Jannat, who, I mean, I don't even know 42 million में कितने zero होते हैं, उतने इनके follower हैं. It's insane. It's crazy. But she's done it purely by, engaging, knowing what people relate with her and connect with her. तो इस तरह जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मुझे याद है कि हम अच्छे एक्टर हैं, इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, पापड़ बेलने पड़ते. हम वी यूज्ड टू हियर कि पृथ्वी थिएटर में फलां डायरेक्टर आने वाला है आज, तो हम पृथ्वी के बाहर, क्योंकि अंदर तो हमको चांस नहीं मिलता था परफॉर्म करने के लिए मंच पर, तो हम पृथ्वी के बाहर ड्यूरिंग ब्रेक, एक्ट 1 और एक्ट 2 के बीच में जो प्ले चलता था उसके बीच में जो ब्रेक होता था, कैफे के सामने खड़े रह के 4 लोग मिलके एक्टिंग करना शुरू कर देते थे. मतलब वी यूज्ड टू गो लाइक कस्टमर्स कि लाइन में खड़े हैं हम लोग,
कॉफी वॉफी लेने के लिए पृथ्वी कैफे के पैसे तो नहीं थे खरीदने के, वाज वेरी हाई-फाई कैफे, but we used to start just doing nukkad natak right there on the street outside, just so that people would notice us and maybe potentially give us an opportunity. You have to do things like that, you have to do radical things like that to be even noticed. Lekin ab with platforms like Josh, I think हिंदुस्तानी टैलेंट को इतना जबरदस्त मंच मिल गया है. I mean the numbers are shocking. आप समझिए कि यूजर जनरेटेड कंटेंट UGC जैसे आप बनाती हैं, करेक्ट? मुझे सीखना है आपसे, मैं आके have to take a course from you. नहीं तो I'll become unrelatable with my own kids. तो यूजर जनरेटेड कंटेंट में आज 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ लोग जो कंटेंट बना रहे हैं. जस्ट इमेजिन दैट, 1.5 करोड़ लोग हैं जो आज कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हैं जोश प्लेटफॉर्म पर. हमने जब ये सहर reached out to me and she said, Vivek, we're going to launch this influencer festival. I said, ये बड़ा novel idea है. It's not a contest or a competition. It's a festival celebrating all influencers. And entries में I was expecting कि ठीक है यार 20,000 तो खुद जोश के managed content creators हैं, वो influencers हैं. तो मुझे लगा 20 के 25 हो जाएंगे, 30,000 हो जाएंगे. I was shocked when she told me 180,000 entries पे they had to stop कि भैया और नहीं हो पाएगा. 180,000 entries coming in of influencers, each of them influencers from भारत के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं. So I feel this is a true celebration of that real influencer terms में democracy. आपको किसी के मंच की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना मंच खड़ा कर सकते हैं. 5 मिनट में you can have a account on Josh and start displaying your talent, your ability, and make it there, and even monetize it. Am I right? You can even monetize, right? Yeah. आप इसमें से कमा भी सकते हैं. Huge community to compete with, to become popular overnight or whatever. See, I very interesting points you made. आप खुद जर्नलिस्ट हैं. मैं उस समय से हूँ जब एक जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है. आपको समय लगता था, आपको किसी के नीचे अप्रेंटिस करना पड़ता था, आपको एक स्टार के साथ इंटरव्यू के लिए भेजने से पहले बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे. तब जाके यू वर सेंट बाय द पब्लिकेशन कि भैया अब ठीक से जाओ. जब हमसे लोग मिलने आते थे तो पूरी रिसर्च करके आते थे. और हमने वो पिछले 20 साल, मुझे 20 साल हो रहे हैं अप्रैल में, 20 years of my career this coming month of April, and I have seen that shift. And today anybody is a journalist, anybody is a film critic. It is very anybody is a photographer. So it is very empowering in one way that कोई entry barrier नहीं है. But at the same time everything is coexisting. आज आप भी यहाँ हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कहीं जाए, कहीं इनवाइट हुए, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए अपनी टिप्पणी डाल देते हैं, गालियां भी बक देते हैं और उनको भी व्यूज मिल जाते हैं. So I feel that वो क्रॉसओवर बहुत स्मूथ है. वो इट्स नॉट आइदर और, सब साथ में चल रहा है. सेम थिंग लाइक जन्नत का एग्जांपल ले लीजिए. आज वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और अब वो एक सिंगर भी बन रही है. मैं कहा कोई और जॉब है, बाकी सबको निकम्मा करना है, कुछ छोड़ेगी नहीं किसी के लिए. छोड़ेगी नहीं किसी की. तो शी इज सो मल्टी टैलेंटेड. पीपल लाइक दिस आर कमिंग इन एंड क्रिएटिंग their content on platforms like Josh, and Josh is enabling them to reach out to, अभी कितने थे यार, 16 करोड़ लोग, 15 करोड़ से तो ज्यादा है जोश पे, right? More than 15 crore people. 15 करोड़ से ज्यादा लोग आज जोश के प्लेटफॉर्म पे हैं. तो आज अगर कोई चीज क्लिक होती है, जन्नत put something or हरनाज put something and it goes viral, it connects with people. और वो कनेक्शन बनाना भी कोई आसान काम नहीं है. तो इफ दैट कनेक्ट्स विद पीपल, 15 करोड़ लोग तक आप पहुंच सकते हो. ये आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया. आई थिंक दैट्स द गेम चेंजर. एंड व्हाइल शी इज एन इन्फ्लुएंसर, देयर इज स्टिल अ प्लेस फॉर एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एंड समटाइम्स विल कंबाइन बिटवीन टू, सिंगर्स, बहुत सारे लोग. आई थिंक ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की जो दुनिया है उसकी एक नई पहचान, एक नई जगह बन रही है. जोश इज वन ऑफ द टॉर्च बेयरर्स, मतलब आगे जो मशाल लेकर चल रहा है. Josh is one of the torch bearers of short form content, and not only just creating or aggregating short form content but also celebrating. हमने इससे पहले एक बहुत बढ़िया फेस्टिवल किया था JFlix का, जहाँ पे इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स को हमने सेलिब्रेट किया गोवा में. We were all there, मैं था, अन्ना थे, हम सब बैठ के, फरा थी, हम सब बैठ के बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे थे. So many young kids from कहाँ से, भारत के कोने-कोने से जीत गए.
Then what is the name of the other contest? World famous. वर्ल्ड फेमस एक बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट है जहाँ पे BNC सेंटर से, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे गांव से, शहरों से, कस्बों से बच्चे पार्टिसिपेट कर, कहीं भारत के युवा पीढ़ी में भी एक जोश भर रहा है। आई लव दैट। इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स का अपना एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जी। ऐसे में भारत कहाँ पर स्टैंड करता हुआ आपको नजर आता है? जन्नत आपसे भी जानना चाहूंगी एंड Yeah. No, so influencer community per se in India it's budding like anything. So we are actually tapping into the new talent like world famous, for example. The last place that we did was Rajasthan. We picked up 10,700 creators from Rajasthan itself because we went not only to the metros, हम लोग hinterland में गए and we caught this talent that you can't imagine. We didn't even know it existed. But when we were in Rajasthan, when we were in those communities, we saw that they had no platform. They couldn't come up. Few days ago we did an activation in Dharavi. I can't tell you the kind of talent that we found because हम लोग सोच रहे हैं मुंबई में कर रहे हैं, थोड़ा मुंबई का talent लेते हैं. And Dharavi was such a brilliant place, to find talent. Today you'll see them on stage, beatboxers, singers, rappers, all of them. And what we're trying to do here in Josh Wakao is say, we are trying to put people, ऐसे नहीं कि you are a star so we have put you there to perform. We are taking people that have fans, have followers, are influencers, and maybe these people also people don't know of, and we are providing them with a stage to say, here it is, show off your passion, show off your talent over here, because we know we are here to celebrate you. So you won't even have heard of some of these people, that are going to be on stage tonight. But when you see that talent, you will understand that we are trying to put a stage together for them to be noticed, for them to feel like, my talent can be seen across it. Sir. Yeah. जन्नत, how much हिंदी या फिर आपकी कोई भाषाएं जो हमारे देश में चलती हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आपके नज़रिए से? ऐसे हिंदी भाषा है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश मार्केट की अगर हम बात करें, मैं उस पर्सपेक्टिव में आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे जो काफ़ी सारे बॉलीवुड के गाने हैं वहाँ पे बाहर के लोग लिपसिंग कर रहे हैं एंड दे आर मिलियंस नाउ। उनके खुद के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो कर क्या रहे हैं, वो हमारे गानों पर लिपसिंकिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द फीलिंग। उनको पता नहीं उसका मतलब क्या है, बट वो बना रहे हैं, वो अपने लोगों को भी उसके लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पूरी फैमिलीज मिलकर बना रही है। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। हमें खुद बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे गानों पर वो लोग बना रहे हैं और उनको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर और भी कंट्रीज के लोग बना रहे हैं। हमारे जो यहाँ के डांस के ट्रेंड्स होते हैं या हुक स्टेप्स होते हैं वो बाहर के लोग करते हैं। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। और जैसे आपने कहा कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स का क्या वो है इंटरनेशनल लेवल पर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट देम। जो जोश वकाओ कर रहा है और पिछले कई टाइम से करता आ रहा है, ये मेरा पहला इवेंट है जो मैं अटेंड कर रही हूँ और मुझे जानने मिला है कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहाँ से छोटी छोटी जगहों से ढूंढ कर निकाला इन्फ्लुएंसर्स को, बिकॉज आई थिंक द राइट प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितने सारे क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनको अभी तक ये राइट वो मिला नहीं है, क्लिक नहीं मिला है। वो जो क्लिक एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट बनाने में लगता है आधा दिन निकाल देते हैं, बीट एडिटिंग, बीट डायलॉग्स, बीट शॉर्ट्स, उनका सब कुछ इतना अमेजिंग होता है, बस वो राइट क्लिक की जरूरत होती है। आई थिंक दैट जोश वकाओ इज गिविंग देम। सो आई कांट बी हैप्पियर बिकॉज दे सेलिब्रेटिंग अस और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उनको एंड आई एम श्योर कि वो लोग भी बहुत मोटिवेट होंगे इससे और बहुत खुश होंगे। विवेक, आपसे जानना चाहती हूँ, एक बार एक लेखक एंड इनफैक्ट एक लिरिसिस्ट ने मुझसे कहा था कि आजकल गाने जो होते हैं वो सिर्फ एक शॉर्ट्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, क्योंकि अगर वो चल गया तो हिट है गाना। ये ट्रेंड अच्छा भी है और कहीं जाके थोड़ा सा दुख भी होता है। आपका टेक, क्योंकि आपकी फिल्मों के गाने अभी भी चलते हैं, आई एम श्योर म्यूजिक में आपका भी उतना ही इंटरेस्ट रहा होगा। देखिए, बात तो आपकी सही है। एक हार्ड रियलिटी ये है कि लोग अब रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान जुगाड़ का देश है कि कोई चीज़ चलती है तो लोगों को लगता है ये फॉर्मूला मिल गया भैया, अब इसको रिवर्स इंजीनियर करो, जुगाड़ बनाओ इसका। पर हर एक इंसान मनमोहन देसाई की तरह फिल्म तो नहीं बना सकता था। सबको पता है कि मसाला फिल्में चलती हैं बॉलीवुड में। आई थिंक जैसे कश्मीर फाइल्स है,
जब चली तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसे नहीं था या किसी बॉक्स ऑफिस पंडित को अपॉर्चुनिटी नहीं थी ये प्रेजेंट करने के लिए कि इसमें क्या एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये 230 करोड़ का धंधा करे। पर उसमें एक चीज थी, एक सोल था, एक स्पिरिट था। और मैं विवेक को पर्सनली जानता हूँ, विवेक अग्निहोत्री को, बहुत जुनूनी इंसान। अगर करते हैं तो पूरी जुनून, पूरी शिद्दत से करते हैं, जो भी करते हैं। मुझे ताशकंद फाइल्स भी उसी शिद्दत से लगी कि उन्होंने बनाई। तो वो कहीं ना कहीं शिद्दत आग बन गई, लोगों को छू गए, लोगों के इमोशंस को छू गए। क्योंकि अगर आप दिल से कोई बात करते हो तो दूसरे के दिल तक पहुंच जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट विवेक डिड। अब मुझे लगता है कि हम पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें और फेल हो जाएंगे, पॉसिबली, चाहे चल भी जाएंगे लेकिन फेल भी हो जाएंगे। लेकिन एक अगर आपने दिल से कोई चीज बना ली, आपने कश्मीर फाइल्स जैसा फिल्म बना दी है, गाना कोई खूबसूरत बना रहे, जैसे ये गा रही है जन्नत, एक इनका पॉप सॉन्ग निकल के आ रहा है। आई होप कि वो इतना प्यारा गाना हो कि लोग उसे कैच करें, पिक करें और कनेक्ट करें। उसके बाद इट डजंट मैटर कि 15 सेकंड है, 30 सेकंड है, 1 मिनट है, 2 मिनट है, देन इट डजंट मैटर। बिकॉज एक क्रिएटिव चीज एक बार कनेक्ट हो जाती है तो कनेक्ट हो जाती है। बट यू आर राइट कि कोशिश सबकी जारी है। लोगों को लगता है कि जुगाड़ का तरीका ये मिल गया तो मिल गया। अच्छा, ये जो है हमारी हरनाज जो है, इनसे भी कुछ सवाल पूछे जाएं क्योंकि मिस यूनिवर्स के स्टेज पे पूछे गए थे और इन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दिए। She is fantastic at answering a lot of questions that she showed the whole world. I'm Very just so proud of you amazed for to that. listen to your answers. You both are incredible and मतलब मेरा भी चांस है मिस यूनिवर्स। जब आपने अपने आप को कभी ऐसे सोशल मीडिया पर देखा होगा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि मे बी बिफोर विनिंग दिस क्राउन एंड आफ्टर विनिंग दिस क्राउन, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि अरे मैं सोशल मीडिया पर ऐसे भी हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मैं हमेशा शाय होती थी, इंट्रोवर्ट होती थी, सोशल मीडिया पे हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होती थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट बीइंग द यूथ it's important to be on social media because that's one of the medium through which you can connect and you can have your perspectives and you can entertain people, be an influencer also. So that was the thing. But I made sure कि जब मैं सोशल मीडिया पे जो भी डालती हूँ उसका BTS भी डालती हूँ कि जो हम क्रिएट करते हैं वो एक पोस्ट आप लाइक कर देते हो या आप उसको डिसलाइक कर देते हो, बट आपको नहीं पता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। एंड मैं अपना सोशल मीडिया हमेशा इसीलिए रखती हूँ कि जो भी उसको देखे, जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, कि उनको ये रिलेट कर सकूँ कि मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कला है, आपके अंदर भी है, आप भी आओ और अपने आप पे यकीन रखो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो दैट्स द मीडियम थ्रू विच आई वांट टू एम्पावर पीपल, सोशल मीडिया। एंड जोश में भी कि आप अपना जोश दिखाओ, कितना जोश है आप में, तो उसके थ्रू आप अपने टैलेंट्स को दिखा सकते हो। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आप बहुत चीज़ें कर सकते हो तो क्यों नहीं। एंड आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करोगे जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी देखी है। शुक्रिया। थैंक Thank यू। you, वन thank मोर you. क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। आज की जनरेशन के सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका है, आपके दूसरे मीडिया में भी अलग अलग जगह पर भी होंगे। कई बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारी जनरेशन के पास ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन आइडल्स कहीं कम तो नहीं हो गए हैं? हरनाज एक ही आती है ना, शी विल कम ओनली वंस, यू विल कम ओनली वंस, बट नॉट, डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ battle will be there? Who is the correct one and who is not the correct one? You are absolutely right. Harnas is only one. You are only one. He's only one. She's only one. And you are your own idol, is what I believe. When you believe in yourself, you have the confidence within. Nothing can stop you, and you become unstoppable. If you can't find your idol, just stop searching. Search for yourself within. आप अपने आप को explore करो, अपने साथ time spend करो, देखो आप क्या क्या कर सकते हो, और कभी अपने आप पे डाउट मत करो। So that's what I did. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा और अपने आप को अपना आइडल माना और ऐसे ही आगे बढ़ती रही। और अपने आप को अगर आपके अंदर फ्लॉज है तो उसको एक्सेप्ट करो। इट्स ओके, यू आर यूनिक। जो आपके अंदर टैलेंट है वो किसी और के अंदर नहीं है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कि जोश जैसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि सबको नहीं मिलता है।